Hello friends, welcome to India Journey. Today we are going to do the previous year vocabulary of 2021, right? We'll do all the important vocabulary of which I have taken from previous year 2021. So I hope तुम्हारी preparation अच्छी चल रही होगी. After a lot of time, I'm coming with a vocabulary video, like vocabulary series. थोड़ा बहुत दिनों से नहीं आ रहा था. I'm so sorry for that because of my exams and other pressures. I was not able to come with any video because मेरी college वगैरह चल रही है, right? That's why I could not come. But I'll be doing all the sessions. I will take many sessions till your exams so that तुम्हारी vocabulary में कोई problem नहीं है, right? तुम्हारी synonyms, antonyms, everything I'll cover up. Don't worry at all. I'll come up with many videos. So today we are going to discuss around 18 new words that can likely be coming in your exam. So just focus here. You can see that these are the PYQs of 2021, right? These are the synonyms that has come in 2021 में ये सब synonyms आए थे, right? So I have taken the notes from all these questions. I have made my notes and accordingly तुम्हें बस सभी चीज़ों को याद करना है. Like see, this is the notes that I have made from all those vocabulary. See, the first word is contagious. Contagious means infectious, communicable और catching. ठीक है, कोई भी चीज़ contagious है उसका मतलब है कि उससे इन्फेक्शन हो सकता है. कम्युनिकेबल है, जैसे मान ले कि यू आर अ पर्सन, देर इज़ अ पर्सन ए, देर इज़ अ पर्सन बी. इसको कोई बीमारी है जो इन्फेक्शियस बीमारी है, तो तू जब इसमें सटेगा तो देर आर चांसेस दैट इट विल कैच यू. It is a since it is a communicable disease, it's an infectious disease, so it will be catching also. So catching is also one very important word for this word contagious, right? So you got 4 new words here. Contagious का मतलब infectious, communicable और catching, right? The second word is sarcastic. What do you mean by sarcastic? Saying opposite of what actually the things are, especially in order to insult someone or to show irritation. सरकास्टिक बेसिकली मीन्स जैसे है ना, जो भी चीज़ें रियल है उसके अपोजिट में बोलना इरिटेशन शो करने के लिए या फिर किसी का इंसल्ट करने के लिए. जैसे सपोज लाइक मोदी जी, यू नो मोदी जी इज इन द गवर्नमेंट एंड इफ़ ही डज समथिंग रॉन्ग, तो तुम क्या करते हो, उसको सरकास्टिक वे में रिप्रेजेंट करते हो कमेंट सेक्शन में जाके. or you can see many sarcasm in the comment section of those kind of videos. Or let's take example of Rahul Gandhi. You know, Rahul Gandhi is a Congress leader, right? So Rahul Gandhi, what happens when he gives any speech and all, then people in a sarcastic way, in a sarcastic way, people try to, you know, insult him, isn't it? So this is the real meaning of sarcastic. Insulting someone you know, by saying opposite, or it can also be in the form of like तुम किसी का मजाक उड़ाओ या फिर तुम कॉमेडी करने के लिए भी sarcasm का यूज़ करते हो, राइट? तो यू नो फॉर यू नो कॉमेडी पर्पस के लिए भी तुम sarcasm का यूज करते हो. जैसे सपोज तुम्हारे दोस्त ने कुछ कोई वर्क किया, लाइक उसने सपोज कोई गलती कर दी तुम्हारे साथ, और तुम क्या करते हो कि नहीं यार तुमने तो कोई गलती नहीं करी, तुमने ऐसा नहीं किया, जबकि वो जान रहा है कि मैंने ही ऐसा किया है. तो दैट इज़ कॉल्ड सरकाज़म, कि उसको तुम अपोजिट बोल के और उसको तुम इरिटेट करते हो या फिर इंसल्ट करने की कोशिश करते हो. दैट इज़ बेसिकली सरकाज़म. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थर्ड वर्ड है डायनामिक. डायनामिक मीन्स होता है इंड्योरिंग, लाइक गतिशील. वैसी चीज़ें जो डायनामिक होती है वो गतिशील होती है, दैट हैज़ इंड्योरेंस, है ना. कहते हैं ना कि मिलिट्री पर्सन आर क्वाइट डायनामिक पर्सन. बहुत डायनामिक होते हैं, वो कभी भी शांत नहीं रहते, अपना काम समय पे करते हैं, बहुत गतिशील होते हैं. डायनामिक पीपल जो होते हैं वो लेथार्जिक नहीं होते, वो जैसे तैसे बैठे नहीं रहेंगे, वो अपना काम सही ढंग से करते हैं, राइट? तो दैट इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ डायनामिक. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जानो, that will be enough, right? Fourth word is lamenting. Lamenting has come from lamentation, the word lamentation. Lamentation basically means grief for someone's death, और इसको bemoaning भी बोलते हैं, ठीक है. bemoaning ज़्यादा शोक मनाना, जैसे कोई किसी का डेथ हो गया तो what you do, तुम बहुत
डीप ग्रीफ में आ जाते हो, ठीक है, शोक मनाने लगते हो, तो दैट इज बेसिकली मीन्स लैमेंटेशन और लैमेंटिंग फॉर समवन और बी मोर्निंग फॉर समवन। इसको रिमेंबर करो, इसका नोट्स बनाओ, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आई विल ऑल्सो सेंड दिस नोट्स इन टू द टेलीग्राम चैनल, you can join the telegram channel, its name is NDA journey. I'll provide the link in the comment section. If you have not joined it, just go there and join. You will get many notes there, right? The next word is oratory. Oratory means eloquence. Eloquence basically means बोलने की कला, like if you have a speaking quality, तुम्हारी speaking बहुत अच्छी है, you are very fluent in nature, then you will be called a eloquent speaker, an eloquent speaker. So it will be called that your oratory skill is very nice. For an example, let's take the oratory skill of Anjana Om Kashyap or the other all the anchors on the news channel. They are quite eloquent in nature, be it Hindi, be it English. When they start speaking, they just go on. वो बीच में रुकते नहीं हैं, कोई फ्लक्चुएशन उनकी सेंटेंसेस में नहीं होती है, कहीं पे वो स्टॉप नहीं होते हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एलोक्वेंट इन नेचर, ठीक है। ऑफिसर्स को भी देखो, इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े रैंक वाले, वो काफ़ी एलोक्वेंट होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, रुकते नहीं हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसीट. डिसीट मीन्स डिसेप्शन और बिट्रेयल, बिट्रेइंग समवन, लाइक किसी को धोखा देना, दैट इज कॉल्ड डिसीट, डिसेप्शन, बिट्रेयल। इसको याद रखना, डिसीट, डिसेप्शन, बिट्रेयल। एक्चुअली आई हैव टेकन मैनी वर्ड्स, लाइक एक वर्ड के लिए मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स भी लिखे हैं साथ साथ में, दैट इट कैन हेल्प यू। लाइक नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है अभी डिसीट आया, नेक्स्ट एग्जाम में तुम्हारा डिसेप्शन आ जाए ऑप्शन में, तो नोइंग ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत ही प्रोडक्टिव क्लास है, इसको मिस मत करो, राइट। इसको जो भी मैंने अभी इसके पहले मैंने 6-7 सेशंस लिए हैं वोकैबुलरी के, उसको भी जाके देखो अगर तुमने नहीं देखा है, उसके नोट्स बनाओ। दोज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन डायरेक्टली कम इन योर एग्जाम। ऐसे ज़्यादा हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ें पढ़ो जो एग्जाम में आती है, दैट विल हेल्प यू इन द एंड, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड है नॉबिलिटी. नॉबिलिटी मीन्स ग्रेटनेस. नॉबिलिटी मीन्स ग्रेटनेस, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रॉन. पैट्रॉन बेसिकली मीन्स स्पॉन्सर और बैकर, वन हु इज बैकिंग समवन विद either financially or with some other way, right? Patronic someone means sponsoring. बोलते हैं ना कि he is sponsoring विराट कोहली, और you can say ये अभी कुछ दिन पहले जैसे कोई चीज़ का एडवर्टीजमेंट कोई करता है तो व्हाट ही बेसिकली डज, दे स्पॉन्सर देम, ठीक है, उनको बैक करते हैं, फाइनेंशियली बैक करते हैं ताकि तुम उनका एडवर्टीजमेंट करो, ठीक है. तो स्पॉन्सरिंग, अब जैसे बोलते हैं ना कि कोई गरीब बच्चा है, मान लो तेरे पास बहुत पैसे हैं, यू बिकम एन ऑफिसर, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्पॉन्सर someone's financials related to the education, you can finance their education, you can sponsor them. So that is basically the meaning of sponsor, backing someone or patron, ठीक है. I hope you got this word. Next word is unpretentiousness. Unpretentiousness. Unpretentiousness means modest, being simple, being natural, being straightforward. वैसा व्यक्ति जो नेचुरल हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब जो मुंह पे आए बस बोल दे, ठीक है. डजंट वरी, डू नॉट वरी अबाउट कि दूसरों का रिएक्शन क्या होगा या फिर मैं झूठ बोलूँगा, ठीक है. तो नेचुरल बंदे जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो होता है मुंह पे होता है, साफ साफ बोलते हैं, वो कुछ अपने अंदर छुपा के नहीं रखते, ठीक है. तो बीइंग मॉडेस्ट, बीइंग सिंपल, being straightforward, being natural, this is the meaning of unpretentiousness. I hope you got it. तो इसको लिखो ज़रूर, ठीक है, एंड बार बार रिवाइज करो, that's the important thing. Revising is very important, just writing will not work, okay. अब मैं देखता हूँ, जैसे कि लोगों को देखता हूँ जब मैं तो करीब 3-4 मिनट देख के वीडियो छोड़ देते हैं, तो ये ऐसे नहीं करो, ठीक है. पूरा वीडियो देखो एंड ट्राई टू मेक नोट्स. अगर तुम्हें देर हो रही है तो what you can do, you can see the video in 1.5x or you can see the video in 2x speed so that you can cover it easily. और बाकी notes तो telegram में दे दूंगा, but it's very important to make yourself your handwritten on notes, ठीक है. अब देखो next word is conceit. Conceit means arrogance, narcissism or vanity, you know, having arrogance, or there is a sentence for it, excessive pride in oneself. A person who has excessive pride in oneself, that is called a person with like conceit or vanity or arrogance.
देखते हो ना, जैसे कि कोई कुछ लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में जिनके पास बहुत ज़्यादा लाइक घमंड होता है खुद को लेके, बहुत ज़्यादा. प्राइड इन वन सेल्फ इज़ अ गुड थिंग, लेट मी टेल यू, बट एक्सेसिव प्राइड इज़ नॉट दैट वेल. You should not have excessive pride, or like if when you will have excessive pride it will change into arrogance, and arrogance is not good thing. So narcissism is also a word, it can likely to be coming in your examination, narcissism aa sakta hai, so please remember this word. Next word is reconnaissance. Reconnaissance basically means investigation, survey, inspection or observation. Investigating something, inspecting or observation, having observation. This is the meaning of reconnaissance, right? I hope you got this meaning. The next word is ratification. Ratification means the action of signing or giving formal consent to a treaty, contract or agreement, making it officially valid. Ratification का मतलब होता है कि तुमने किसी ट्रीटी पे या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर किसी एग्रीमेंट पे अपना फॉर्मल कंसेंट दिया और तभी ऑफिशियली वैलिड हो गया, ठीक है. जैसे सपोज तुम्हें अपना कोई डॉक्यूमेंट को वैलिड कराना है, तुम्हें कोई अपना नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है. जैसे तुम्हें डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, तुम्हें गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं, उनका कंसेंट लेना पड़ता है, राइट, उनका एग्रीमेंट लेना पड़ता है, ठीक है. तो तब जाके वो ऑफिशियली वैलिड हो पाता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेटिफिकेशन प्रोसेस, राइट. The next word is replica. Replica means model or duplicate of something, or there is a new word that is clone or replicate. Duplicate, replicate, clone or model. This is the meaning of the word replica. ठीक है? I hope you got it. इसको remember करो, इसको याद करो, ठीक है. किसी चीज़ का मॉडल रेप्लिका कहलाता है. जैसे सपोज महात्मा गांधी के मॉडल को तुम देखते होगे, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों के मॉडल को तुम चौराहों पे देखते होगे, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड द रेप्लिका, जस्ट मॉडल और द डुप्लीकेट ऑफ समवन. सार्डोनिक. सार्डोनिक मीन्स सरकास्टिक. अभी जस्ट हमने पढ़ा है सरकाजम के बारे में, क्या होता है सरकास्टिक. सिनिकल और मॉकिंग. सिनिकल इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर सार्डोनिक और मॉकिंग इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर सार्डोनिक. सार्डोनिक मीन्स सरकास्टिक, सिनिकल और मॉकिंग. सैलो. सैलो मीन्स ऑफ लिटिल डेप्थ, ठीक है. जैसे कि डीप का जो एंटोनिम होता है वो सैलो होता है. जैसे डीप पॉन्ड, पॉन्ड बहुत डीप है तो एंड इसका फिर उल्टा होगा, मान लो पॉन्ड बहुत कम गहरा है, तो दैट विल बी कॉल्ड सैलो पॉन्ड ऑफ लिटिल डेप्थ, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज श्रीवेल. श्रीवेल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट. श्रीवेल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब सिकुड़ जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ श्रीवेल. दिस आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्डम. सेल्डम मीन्स रेयरली और नॉट ऑफन, ठीक है, कभी कभी, कभी कभी, प्रायः नहीं, ठीक है. नॉट ऑफन मीन्स हमेशा नहीं, प्रायः नहीं, रेयरली. इफ यू डू लाइक सेल्डम वर्ड का यूज करते होगे ना, ये कॉमन एरर में भी आता है, ठीक है. सेल्डम. सेल्डम मीन्स रेयरली, इट्स अ नेगेटिव वर्ड. क्रूक्ड. क्रूक्ड मीन्स अनलॉफुल और इलीगल, ठीक है. क्रूक्ड का मतलब समथिंग विच इज़ नॉट लीगल, जो सही नहीं हो कानूनी तौर पे, या फिर अनलॉफुल उसको कह सकते हो, ठीक है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रूक्ड. सो आई होप यू गॉट इट. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 18 वर्ड्स. ऑल द वर्ड्स वर फ्रॉम PYQ ऑफ 2021. सभी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थे, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स थे मैंने उसको लिया है एंड आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल. तो कमेंट लाइक इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर वीडियो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी वीडियो चाहिए तुम्हें ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, यू कैन टेल मी, आई विल ट्राई टू मेक इट. Since I was not getting time, that is why I was not coming with new videos. So this is all for today. Jai Hind everyone. Please मेहनत करो. You don't have that much time. Like अब तो 1 से 1.5 महीने रहे हैं, ठीक है. You have to work hard. 4 सितंबर को CDS भी है, 4 सितंबर को NDA भी है. So those preparing for NDA, just focus on mathematics. It's very important. मैथ्स को मत छोड़ो. इंग्लिश साइंस को मजबूत करो. GAT में साइंस और इंग्लिश तुम्हारी एकदम पकड़ में रहनी चाहिए. साइंस इंग्लिश से बहुत कम क्वेश्चन गलत होने चाहिए. मतलब कोशिश करो कि तुम ये 100 क्वेश्चन के अंदर करीब 70-80 कर लो सही, ठीक है, साइंस और इंग्लिश में. तब जाके तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा आराम से. ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा बहुत भी कर लोगे, पॉलिटी वगैरह थोड़ा भी कर लोगे तो चलेगा. और जो बच्चे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा सीरीज चल रहा है. वी हैव अपलोडेड 3 वीडियोज़
उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़ेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से ज़्यादा संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।